এলস দিয়ে কি করি আমরা? ইফ এলস দিয়ে যখন প্রোগ্রাম লিখি মানে কি, ইফ আমরা চেক করি একটা কন্ডিশন, সেটা যদি ট্রু হয় তাহলে সার্টেন লাইনস অফ কোড এক্সিকিউট হবে, যদি এটা ট্রু হয়। তারপরে এলস ইফ করে আবার আমরা কিছু কন্ডিশন চেক করি, যদি এই কন্ডিশনটা ট্রু হয় তখন আমরা সার্টেন লাইনস অফ কোড এক্সিকিউট করি। বুঝতে পারছিস জিনিসগুলো? তাহলে এই টাইপের। এবার এই সুইচ কেস, ইফ এলস এর জায়গায় আমরা ইউজ করব সুইচ কেস। আমাদের লজিক সেম থাকবে, যে যদি কয়েকটা স্টেট, যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে কয়েকটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে, কন্ডিশন ট্রু হয় স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে, এই জিনিস। যেমন ছোটবেলায় একটা প্রোগ্রাম করেছিলি, যে সাপোজ তুই ডে ইনপুট দিলি, ইন্ট ডে নাম্বার ইকুয়ালস টু, ধর তুই নিচ্ছিস 2, তারপরে তুই এখানে করছিস যে স্ট্রিং ডে নেম ইকুয়ালস টু, এটা একটা ব্ল্যাঙ্ক স্ট্রিং দিলাম। এবার মানে আমি করতে চাইছি এখানে যে যদি কেউ 1 ইনপুট করে তাহলে মানডে, 2 ইনপুট করে তাহলে টিউসডে, এইভাবে আমি এটাকে দেখাতে চাইছি। তাহলে কি লিখবো আমি? ইফ ডে নাম্বার ইকুয়ালস টু 1, তাহলে আমার কি হয়ে যাবে, যে ডে নেম ইকুয়ালস টু মানডে। এলস ইফ ডে নাম্বার ইকুয়ালস টু 2, বল কি হবে, ডে নেম ইকুয়ালস টু টিউসডে। এইভাবে যাব 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 যাব। তারপর আমি আবার চেক করব যে এলস ইফ ডে নাম্বার ইকুয়ালস টু 7, তাহলে ডে নেম কি হতে পারে, সানডে হয়ে যাবে। এরপর একটা ছোট্ট জিনিস লিখবো যে এলস ডে নেম ইকুয়ালস টু কি হয়ে যাবে, ইনভ্যালিড ইনপুট হয়ে যাবে, তাই না? তারপরে এটার পরে আমি এক্সিকিউট করব যে সিস্টেম আউট প্রিন্টলন, বলবো যে ডে নেম। বুঝতে পারছিস কি হচ্ছে ব্যাপারটা? বুঝিস নি? বুঝতে পেরেছিস? सवाई बुझेছিস কি হলো? सब सबको समझ में आया ना? क्या हम बांग्ला में बोल रहे, दिक्कत होने से बताना, ठीक है? किसी को ऐसा है जो नहीं समझ में आया प्रोग्राम क्या कर रहा है, কি করছে বলতো ব্যক্তিগত? 7 অবধি, সানডে অবধি হচ্ছে। এবার যদি 1 থেকে 7 ছাড়া অন্য কিছু দিচ্ছে, ধর 10 দিচ্ছে, তখন ইনভ্যালিড ইনপুট। ঠিক আছে? এবার আমি এখানে কি করলাম, আমি দেখ প্রত্যেকটা ইফ কন্ডিশনের পরে দেখ এখানে কিন্তু আমি প্রিন্ট স্টেটমেন্ট লিখছি না, আমি এই যে ব্ল্যাঙ্ক যেটা নিয়েছিলাম স্ট্রিং ভেরিয়েবলটা, সেখানে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছিস? এটা লাভ কি হলো, আমাকে প্রত্যেকটা লাইন মানে প্রত্যেকটা কন্ডিশন পরে ওই সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন মানডে, সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন টিউসডে, এইভাবে লিখতে হলো। ঠিক আছে? আমি কোথায় ইউজ করলাম প্রিন্টএলএনটা, মানে এটা দেখ এখান থেকে শুরু হলো, ইফ হলো, এলস ইফ হলো, এই করতে করতে সানডে অবধি গেল। ইনভ্যালিড ইনপুটটাও আমি অ্যাসাইন করে দিলাম যে ডে নেম ইনভ্যালিড ইনপুট। তারপরে फाइनली আমি একবারই শুধু लिखलाम सिस्टम डॉट प्रिंटलन। समझ में आया? हम सिर्फ एक बार सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिखे। अब मान लो यूजर का अगर इनपुट आया था 2, तो डे नेम में क्या वैल्यू आ जाता, ट्यूसडे। ट्यूसडे आता, उसके बाद फाइनली जब वो प्रिंट करता तो क्या प्रिंट होता, यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट होता। ডে নেম 2 থাকলে, সরি ডে নাম্বার 2 থাকলে ডে নেমে টিউসডে অ্যাসাইন হতো, আর প্রিন্টিং এ যখন डे नेम वैल्यूटा মানে ट्यूसडे पुश করতো, प्रिंट करतो। सिमिलरली अगर डे नंबर अगर 10 आता, तो डे नेम में क्या वैल्यू चढ़ जाता, इनवैलिड इनपुट। और यहाँ पे सिस्टम आउटपुट एलएन में क्या प्रिंट होता है, इनवैलिड इनपुट प्रिंट होता है। उससे बड़ी चीज समझ में आया सबको? ठीक है? अच्छा, अब इसी स्टेट में, ये तो इफ एल्स से तुम लोग को पता है, ये सब कोड किए हुए हो, क्लास 8 में किए थे ना ये सब कोड, করেছিলি ক্লাস 8 এ? এবার এই জিনিসটাকে, সেম জিনিসটাকে আমরা কি করব, আমরা সুইচ কেস দিয়ে লিখব। ঠিক আছে? সুইচ কেস দিয়ে লেখার জন্য কি করব, প্রথম লাইনটা সেম থাকবে, মানে যেটা এখানে আমি ডে নাম্বার করে নিয়ে নিচ্ছি, বাট এটা আলটিমেটলি ইউজার ইনপুটও নিতে পারি। ওই ডে নাম ইন্ট ডে নাম্বার ইকুয়ালস টু এসসি ডট নেক্সট আইএনডি করে ইউজার ইনপুট নিয়ে, ঠিক আছে?
তারপর আমি সেম এটা লিখবো যে স্ট্রিং ডে নেম ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক স্ট্রিং নিলাম একটা। তারপরে দেখ সব স্মল কেসে সুইচ SWITCH সুইচ সুইচ, আর এখানে আমি একটা ভেরিয়েবলটা লিখবো সুইচ ডে নাম্বার। এবার আমি লিখবো এখানে কেস 1, ঠিক আছে? কেস 1 এই যে সুইচ ডে নাম্বার, মানে ডে নাম্বারের উপরে বেস করে আমার চেকিং হবে। কি চেকিং করবে? এই কেস 1 এ যে ভ্যালুটা লিখেছি না, মানে 1, এটা চেক করবে। যদি ডে নাম্বার এখানে 1 থাকে তাহলে এই কেস 1 টা আমার এক্সিকিউট হবে। এবার ডে 1 এর ভিতর আমি কি লিখবো? আমি লিখবো যেমন এই যে ইফ ডে নাম্বার ইকুয়ালস টু লিখেছিলাম, सेम জিনিসটা আমার এই केस 1 জিনিসটা বলছে। इफ डे नंबर इक्वल्स टू 1 में क्या चेक कर रहा था कि डे नंबर का वैल्यू 1 है कि नहीं। अगर 1 होता तो वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता। सिमिलरली केस 1 लिखने का मतलब होता है कि ये डे नंबर का वैल्यू अगर 1 है तो, अगर ट्रू है तो इसका जो ब्लॉक है जो कि डे नेम इक्वल्स टू मंडे, यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आया? বুঝিসনি? আচ্ছা, কোন জিনিসটা বুঝিসনি বল। আচ্ছা, আমি একটু লিখে নি, তারপরে হয়তো বুঝতে পারবো। बोलिए। कौन जाएगा? किसके पेरेंट? कौन था? কেউ চিনিস? কারোর পেরেন্ট? হ্যাঁ রে, কারোর না? তোরও নাই বাবা, তাহলে এটা তো অসম্ভব ব্যাপার। তোরা নিশ্চয়ই কেউ কাউকে ফরওয়ার্ড করেছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কেউ কাউকে ফরওয়ার্ড করেছে, এছাড়া হতে পারে না। আরশাল, তোর কেউ হয়? তোর বাড়িতে কেউ জয়েন করেছিল? না, তো কেউ গ্রুপে নেই। সুরভি, সৌপ্তিক, প্রিয়ন্তিকা, মৃগাঙ্ক, মধুরা, আরশাল, অর্চিতা। কম্পেয়ার করতে থাক, তাহলে ইজি হবে বুঝতে। আমরা এই জিনিসটা সেম লিখলাম, असाइन করলাম, ডে নাম্বারটা ইনপুট নিচ্ছি। उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिए डे नेम विच इज ब्लैंक, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे इफ में कि इफ डे नंबर इक्वल्स टू 1। स्विच केस के लिए क्या करेंगे, स्विच ये कीवर्ड है, ये लिखेंगे एज इट इज इन स्मॉल केस। उसके बाद ये कीवर्ड है, दिस इज अ कीवर्ड। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर हम डे नंबर लिखेंगे, मतलब जो भी डे नंबर का वैल्यू है बेस्ड ऑन दैट मेरा कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला लिखा हुआ है केस, ये केस भी एक कीवर्ड है, स्मॉल केस में आएगा, केस CASE।
उसके बाद वन जो मैं लिखा हूं ना, वन, ये वन, ये वन तब एग्जीक्यूट होगा जब डे नंबर का वैल्यू वन होगा। जैसे यहाँ पे इफ में था ना कि इफ डे नंबर इक्वल्स टू वन, तब जाके ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था। उसी तरह से जब डे नंबर का वैल्यू वन होगा तब ये केस वन ट्रू होगा मेरा। समझे बात को? जब केस वन ट्रू होगा तो दिस इज द ब्लॉक ऑफ केस वन, ये केस वन का ब्लॉक है। अगर केस वन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट कि डे नेम में मंडे असाइन हुआ, उसके बाद मेरे को ब्रेक, ये एक कीवर्ड है, ब्रेक इज अगेन अ कीवर्ड, ये लिखना पड़ेगा। ब्रेक लिखने का मतलब, जैसे मान लो हम जब लूप लिखते हैं ना फॉर, तो क्या कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ओपन और क्लोज होता है, यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता है। इसका क्या मतलब होता है कि ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर जो भी है दैट इज विद इन दैट पर्टिकुलर इफ ब्लॉक। सिमिलरली ये ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ तक वो केस वन के अंदर है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद केस टू कब होगा बोल सके, वो कब ट्रू होगा? जब डे नंबर, जब डे नंबर का वैल्यू टू है, मतलब अगर यूजर इनपुट करता है टू, तो जब टू इनपुट करेगा तो केस वन फॉल्स हो जा रहा ना, वन के साथ टू मैच नहीं कर रहा। तो कौन सा मैच करेगा? केस टू। ये जो टू जो वैल्यू है ना, दैट वैल्यू रिजेंबल्स द डे नंबर का वैल्यू। ये वन, ये टू जो लिख रहा हूँ ना, ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली रिजेंबल्स डे नंबर का जो वैल्यू आएगा। तो अगर डे नंबर इनपुट आया टू, तो मेरा केस टू ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने से केस टू का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब डे नेम में ट्यूसडे असाइन हुआ। उसके बाद ब्रेक विच इज अगेन अ कीवर्ड, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया ना, मुझे सिर्फ असाइनमेंट करना था। जैसे ही खत्म हुआ मुझे ब्रेक लिखना पड़ेगा। क्यों? ये ब्रेक डिनोट्स कि ये केस टू का ब्लॉक खत्म होता है अभी। उसके बाद फिर फर्दर ऐसे ही चेक करें, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, केस सिक्स करके केस सेवन तक जाएगा। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। केस सेवन मतलब जब डे नंबर का वैल्यू सेवन है तो केस सेवन ट्रू होगा। केस सेवन में क्या क्या काम हो रहा है? दो काम, एक है संडे असाइन होना डे नेम में, और दूसरा है ब्रेक कर देना। केस सेवन का काम खत्म। दिस इज विद इन द ब्लॉक ऑफ केस सेवन। अब मान लो जैसे डे नंबर का वैल्यू 10 आता है, तो केस वन से लेके केस सेवन कभी भी वो ट्रू नहीं हो रहा है। इन दैट केस कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट में जाएगा। जैसे एल्स होता था ना, इफ एल्स में, ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता था? जब ऊपर कोई भी ट्रू नहीं है तब एल्स एग्जीक्यूट होता था। उसी तरह से जब ऊपर कोई भी केस का वैल्यू ट्रू नहीं होता है तब जाके हम डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेंगे। तो डिफॉल्ट में क्या हो रहा है कि डे नेम में इनवैलिड इनपुट असाइन हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज है कि डिफॉल्ट के बाद ये लिखने के वजह से हर एक केस के बाद खत्म होने के बाद देखो ब्रेक लिखा हो ना, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है, हर एक केस के बाद हम ब्रेक लिखेंगे। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लिखना इज ऑप्शनल। तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। मतलब ये डिफॉल्ट के बाद और कुछ स्टेटमेंट लिखना है ही नहीं मुझे, वो लास्ट है। एज इट इज ये स्विच का ब्लॉक जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक स्विच है, ये स्विच से तो वो निकल जा रहा है बाहर, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ऑप्शनल। ठीक है, याद रखना, दिस इज ऑप्शनल। लिखो ना लिखो प्रोग्राम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब क्या हो गया, ये स्विच खत्म हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद सिस्टम आउटपुट एलएन है विद द डे नेम। अब जो भी डे नेम में असाइन हुआ वो मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। ডিজিটাল ইন্ডিয়া বুঝতে পেরেছিস? কিছু ডাউট আছে? না? আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, এটা আমরা এই জন্য করছি কারণ অনেকদিন ধরে প্রোগ্রামগুলো না স্ট্যাটিক হয়ে যাচ্ছে, সেই ইফ এলস এর বাইরে বেরোতে পারছি না, লুপ শিখিসনি এখনো, তো নতুন কিছু প্রোগ্রাম করানো যাচ্ছিল না। সেই জন্য এই জিনিসটা, সিনট্যাক্সটা শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে তোরা প্রোগ্রামিং একটু ভ্যারাইটি আনতে পারি এখানের জন্য। থিওরি নাহলে অনেকদিন ধরে থিওরি চলছিল। এই সুইচ কেসটা অনেক পরে আছে, মোস্ট প্রবাবলি চ্যাপ্টার 5 এ পাবি তোরা। ঠিক আছে, এই নয় যে চ্যাপ্টার 5টা শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটা সার্টেন পার্ট আমি বলে দিচ্ছি যাতে প্রোগ্রামটা তোরা করতে পারিস। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পারিসনি? একটুখানি করে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এটা কাজ করে।
তবে দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছিস না? চেট নিয়ে চলে আয় সামনে। এবার এবার এত বড় করলে না প্রোগ্রামটা আঁটাতে পারবো না, এক্সপ্লেন করতে অসুবিধা হয়ে যাবে, তুই বরং সামনে চলে আয়। তোরা দেখতে পাচ্ছিস বাকিরা? আরে তুই আগে চলে আয়। তোমার পড়তে হবে। বল। ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল ডট স্ক্যানারটা কি? ওটা প্যাকেজ, তারা প্যাকেজটা অন্যদিন বলে। প্যাকেজ লিখেছিস, প্যাকেজ মানে ডট স্টার করে করা যায়, ডট স্ক্যানার কেউ বলতে পারবি ডট স্টার ডট স্ক্যানার কি তফাৎ? হ্যাঁ, জোরে বল না। দুটো একই তো কাজ, এখানে আমরা একই দেখছি কিন্তু কিছু তফাৎ আছে। প্যাকেজ পড়বো, প্যাকেজ চ্যাপ্টার 1 এর সেকেন্ডে আছে, দেখ প্যাকেজ চ্যাপ্টার 1 এরই ইউনিট ইউ 1 2 করে আছে না, দেখ প্যাকেজ প্যাকেজ হোয়াট ইজ প্যাকেজ আমি তৈরি করে রেখেছি। করাবো, টেনশন নিস না, বলে দেবো। আগে একটা যেটা করছি ওটা করে নি, তারপর ওটা বলছি। ইনপুট দ্য ভ্যালু অফ আ নাম্বার, তারপরে নাম্বারটা আমি অ্যাকসেপ্ট করব, তো ইন্ট ডে নাম্বার নিচ্ছি, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু কি লিখবো, এসসি ডট নেক্সট আইএনটি লিখলাম। এটা কি হলো, আমি নাম্বারটা ইনপুট নিয়ে নিলাম। তারপরে আমি কি করব, একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল নিচ্ছি, স্ট্রিং ডে নেম বা ডে করে দিচ্ছি ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক স্ট্রিং নিলাম। তারপর আমি ইউজিং সুইচ কেস টু অ্যাসাইন দ্য ডে নেম সুইচ, তারপর ভেতরে কি লিখবো, কি লিখবো বল, ডে নাম্বারটা, বেস্ট অন দ্যাট আমার কাজ হবে। তারপর লিখবো কেস ওয়ান, মানে যখন ডে নাম্বারটা আমার ওয়ান হচ্ছে, ইনপুট ওয়ান হচ্ছে, তখনকার কেসটা, ঠিক আছে। এখানে কি করব, সিস্টেম আউট প্রিন্ট এলএন হচ্ছে না কেন, সিস্টেম আউট প্রিন্ট এলএন কেন করছি না, এখানে করব ডে ইকুয়ালস টু মানডে। তারপরে কি লিখবো, তারপর সিমিলারলি কেস টু কি লিখবো, কেস টু হলে ডে ইকুয়ালস টু টিউসডে। তারপরে ব্রেক, एक नहीं ब्रेक, केस थ्री डे इक्वल्स टू वेडनेसडे और ब्रेक। फिर केस फोर डे इक्वल्स टू थर्सडे और फिर केक ब्रेक। उसके बाद केस फाइव, पूरा केक पसंद है ना तुमको, केक बोल रहे हो, केस बोल रहे हो तो भी तो गलत बोल रहे हो, ब्रेक कौन करेगा। उसके बाद केस सिक्स क्या आता है, केस सिक्स में डे इक्वल्स टू सैटरडे, गाना है ना सैटरडे सैटरडे, नहीं होता, किसको आता है, यानिस केस सेवन ब्रेक। अब क्या करना है, लास्ट वाला सात तक तो हो गया, ডিফল্ট, ডিফল্ট ডিসপ্লে, ডিসপ্লে আগে ডিফল্ট হতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ডিফল্ট করছি না, ডিফল্ট না করে দেখি কি হয়। এখানে আমি ডিসপ্লে করব, কি করব, ঠিক আছে। দেখে না একবার জিনিসটা কি হলো ব্যাপারটা। स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, वैल्यू इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट दिए, वैल्यू इनपुट लिए, स्ट्रिंग डे ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन किए, फिर डे नंबर में स्विच में डाले, केस वन केस टू केस थ्री केस फोर केस फाइव केस सिक्स केस सेवन तक गए, और फिर डायरेक्टली डिस्प्ले किए डे का, ठीक है। देखते हैं
कितना डालूं बोलो? 6 आया। अच्छा, अब हम डिफॉल्ट नहीं दिए हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। मान लो हम दिए 10, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं आया, कोई बोल पाओगे? क्यों बोलते পারবি কেন কিছু ডিসপ্লে পাচ্ছি না আমি? ये বল, কোনো ডিসপ্লে নেই, দেখ ইনপুট 10 দিলাম, কোনো ডিসপ্লে নেই, প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে, এরর আসেনি, প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন শেষ হয়ে গেছে। দেখ এখানে কোড एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, कोड इज सक्सेसफुल एग्जीक्यूट, बट आउटपुट नहीं है। कौन बोल पाएगा? गेस करके बोल, थोड़ा कोशिश करो। একটু পরে বলতে চলে যাবো। এটা টেনে দেবে, ধরো টেনে দেবে, বলো। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যা খুশি করো। কেউ বলতে পারবি? আরে ডিজিটাল স্যার ইনপুট। স্যার স্ট্রিং ডেটা আপনি এমটি নিয়েছিলেন, তো যদি সুইচের কোনো কেসটাই ট্রু না হয় তাহলে ডাইরেক্ট যেটা ফার্স্ট ইনিশিয়াল ভ্যালুটা নিলাম ওটাই প্রিন্ট হয়েছে। वेरी गुड। अरे पागल इंसान सब, यहाँ पे क्या डे का क्या वैल्यू है इनिशियली? कुछ है वैल्यू? नहीं है ना। अब यहाँ पे डे में वैल्यू कब असाइन होगा? जब ये कोई भी एक केस ट्रू होगा। मतलब 1 डाला तो मंडे आएगा, 2 डाला तो ट्यूसडे आएगा, इस तरह से 7 तक आएगा, संडे तक। अब इसके बाहर का अगर कुछ भी देता है हमको बताओ, कोई भी केस ट्रू होगा? नहीं होगा। तो असाइनमेंट कुछ होगा? नहीं होगा। तो वो जो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? ब्लैंक स्ट्रिंग का जो वैल्यू, मतलब ब्लैंक कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है ना। तब इतना सा समझने में इतना टेंशन क्यों है तुम लोग को? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट देना जरूरी था। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जब दिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डे इक्वल्स टू इनवैलिड इनपुट, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा केस 1 से लेके केस 7 तक अगर एक भी ट्रू नहीं होता है, तो इन दैट केस मेरा इनवैलिड इनपुट डे वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो अब जब मैं 10 इनपुट करूंगा, यूजर इनपुट, तो मेरा आउटपुट जो आएगा दैट वुड बी इनवैलिड इनपुट। बात समझ में आ रहा है? तब सीधा सा बात, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। 14 डालो, इनवैलिड इनपुट। ठीक है? क्लियर है? हम्म। बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज कि ये जो मैं, यहाँ पे जो मैं ब्रेक नीचे लिखा हूँ ना, इसको अगर मैं इसके बगल में लिखता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये लिखने थोड़ा समझने में देखने में अच्छा लग रहा है कि नेक्स्ट लाइन में तुम सेम लाइन में इसको लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को? ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत ज्यादा एक तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट होता है फॉल थ्रू। ठीक है, अच्छा उसमें बाद में आता हूँ, पहले तुम लोग अभी कोड करो। ठीक है, কোড করো। না এটা না, এটা তো দেখে নিয়েছি। এটা কারোর কিছু অসুবিধা থাকলে বল, বারবার জিজ্ঞেস করছি।
as based on the user's input। मतलब अगर यूजर वन इनपुट कर, सबसे पहले तुमको क्या करना है, थोड़ा सा सुन लो। सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको ना ये चीज डिस्प्ले करना है टू द यूजर। जैसे ही तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, दिस विल बी डिस्प्लेड। वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू एरिया ऑफ स्क्वायर, डिस्प्ले हो गया। अब वहां से यूजर देखा, अच्छा मैं अगर वन प्रेस किया तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, टू प्रेस किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा। यूजर आइदर वन और टू इनपुट करेगा। अगर वन इनपुट किया तो तुमको जो भी नेसेसरी डिटेल्स चाहिए टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना। अगर टू इनपुट करता है यूजर, तो तुमको जो भी नेसेसरी डिटेल्स चाहिए टू फाइंड द स्क्वायर एरिया, तो वो इनपुट लो और फिर कैलकुलेट करके डिस्प्ले करो। अब अगर वन और टू के अलावा थ्री डालता है, तो जो भी तुमको वैलिड मैसेज डिस्प्ले कराना लगता है वो तुम डिस्प्ले करो। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम को और स्विच केस से करना। ये तुम किए हो पहले, তোরা তো করেছিস আগে এটা প্রোগ্রাম, ইউজার ইনপুট ভাবি না, মেগাম তো করেছে, দেখাবো সব করেছিস, ইউজার ইনপুট প্রোগ্রাম করেছিস। আরে মধুরা এগুলো করিস নি এই টাইপের আগে? দেখছি মধুরা হ্যাঁ বলছে। তোরাও তোর সাথেই থাকিস রে, তুইও তো সব করেছিস। আমার লোকে প্রেশার দেবো, আগের দিন অনেক করে পাঠিয়ে প্রোগ্রাম। समझ में आया क्या हुआ? जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये तीन प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन में, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू एरिया ऑफ स्क्वायर। इससे समझ में आ जाएगा कि आइदर वन प्रेस करना है, नहीं तो टू प्रेस करना है। बात समझ में आया? उसके बाद जो भी इनपुट करेगा वो इनपुट लेना है मेरे को, स्टोर करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, क्योंकि अल्टीमेटली वन हो, टू हो, थ्री हो, जो भी हो इंटीजर इनपुट आ रहा है उसको मैं इनपुट लिया। ठीक है, अब मैं करूंगा कि using switch statement to calculate according to users choice, और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे स्विच के अंदर, सी सी एच लिखेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सी एच, मतलब चॉइस के वैल्यू के ऊपर बेस करके हम अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, केस वन, मतलब अगर वन इनपुट आता है, अगर वन इनपुट आता है तो मेरा क्या है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे दो इनपुट्स चाहिए, विच इज द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो हम सबसे पहले लेंगे, टेकिंग इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ब्रेथ। तो हम यूजर को बोलेंगे कि बॉस इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। समझ में आया? यूजर क्या करेगा, खुशी खुशी इनपुट करेगा, लेंथ इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, और इंटीजर ब्रेथ इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये मैं मान ले रहा हूँ कि दोनों ही इंटीजर इनपुट आ रहा है। ऑब्वियसली फ्लोट भी डबल भी आ सकता है, तो इन दैट केस मेरे को डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या करना है सोच के बोलो। इनपुट आ गया ना लेंथ और ब्रेथ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एरिया फाइंड करना है मुझे। तो मैं लिखूंगा इंट एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, बात खत्म।
जैसे ही हो गया उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले कर दूंगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्लस एरिया। हो गया, बात खत्म। ये काम हो गया। बोलो मेरा केस वन का काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया ना। अब मेरे को क्या करना है, ब्रेक देना है, क्योंकि ये ब्लॉक खत्म हो गया। अगर ये इफ एल्स में लिखता तो क्या होता, वो इफ सी एच इक्वल्स टू 1 कर्ली ब्रेसेस ओपन, मैं ये ब्लॉक लिखता कि लेंथ इनपुट लिया, ब्रेथ इनपुट लिया, कैलकुलेट किया, डिस्प्ले किया, उसके बाद क्या वो बंद कर देता ना। तो वो बंद करना हो गया मेरा ब्रेक से हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसके बाद मेरे को क्या करना है, इफ सी एच इक्वल्स टू 2 वो चीज चलाना है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केस इक्वल्स टू 2। केस 2 मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इनपुट द साइड ऑफ स्क्वायर। तो हम प्रॉम्प्ट डालेंगे कि एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इनपुट लेंगे इंटीजर साइड इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। फिर क्या करना है मुझे, डिस्प्ले करना है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज प्लस एरिया। अब क्या करना है, ये काम खत्म हो गया तो ब्रेक देना है। अब क्या करना है नेक्स्ट है, डिफॉल्ट टू चेक फॉर एनी इनपुट अदर देन 1 एंड 2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड इनपुट। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया, काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं एग्जीक्यूट। एरिया डिफाइन किया हुआ है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। काम करते हैं इसको हम लोग हटा देते हैं। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, जैसे एग्जीक्यूट किए सबसे पहले मेरा डिस्प्ले ये है। अब कोई भी शिक्षित व्यक्ति क्या समझेगा कि 1 प्रेस करने से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 करने से एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कौन सा करना है बताओ? 2। जैसे ही 2 प्रेस हुआ और एंटर डाला तो क्या हुआ यहाँ पे, ये 2 एंटर करने से सी एच में 2 आ गया। और फिर स्विच केस में गया जहाँ पे सी एच मतलब 2 आया इनपुट। जैसे ही 2 आया सबसे पहले केस 1 को चेक करेगा, मैच करने का कोशिश करेगा। बट ये तो फॉल्स हो जा रहा है ना, वहाँ पे तो 2 है, 1 नहीं है। तो यहाँ चल जाएगा कहाँ, केस 2 में चला गया, ये परफेक्ट मैच हो गया। तो उसके बाद पहला जो स्टेटमेंट है एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, वो डिस्प्ले हो गया। समझ में आया? उसके बाद हम इनपुट मांग रहा है, वो कितना डालना है बोलो। जैसे ही 4 डाला तो साइड में 4 आ गया, एरिया में 4 इंटू 4 16 आ गया। और ये डिस्प्ले हुआ कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16। समझ में आया? जैसे ही काम खत्म हो गया, ये ब्रेक हो गया, डिफॉल्ट में नहीं जा रहा ऑब्वियसली। अब इसको और मॉडिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो 16 स्क्वायर यूनिट वगैरह वगैरह, ये अपने हिसाब से आउटपुट को मॉडिफाई कर लेना। अब हम देखते हैं अगर 1 इनपुट आता है तो क्या होगा। यहाँ पे 1 करिए, रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल के लिए हुआ तो यहाँ पे देखो, जैसे सी एच माने केस 1 ट्रू होता है तो ये डिस्प्ले हुआ इंटर द इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो 2 इनपुट चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ मान लो देता हूँ 5, ब्रेथ देता हूँ 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एल में 5 और बी में 3 आ गया। एरिया कैलकुलेट हुआ 3 इंटू 5 15। और फिर ये डिस्प्ले हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया का वैल्यू विच इज 15, ये डिस्प्ले। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है,
इस तरह से करेंगे। अब मान लो हम ये छोड़ के कुछ भी और इनपुट करते हैं, जैसे कि मान लो 5 इनपुट करता हूँ जो कि चॉइस में है नहीं, मेरे ऑप्शंस में है नहीं, तो इन दैट केस इनवैलिड इनपुट आएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 स्टोर हो रहा कहाँ पे, ये सी एच में स्टोर हुआ। उसके बाद स्विच सी एच, मतलब अभी स्विच किसके साथ कंपेयर करेगा, वैल्यू 5 के साथ। तो मेरा यहाँ सबसे पहले केस 1 है, ये मैच नहीं हो रहा है। केस 2 है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। इसके बाद तो डायरेक्टली डिफॉल्ट में आ जा रहा है, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट करके निकल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। কারো যদি কিছু অসুবিধা আছে এটা তো বল। বল, কারো কিছু অসুবিধা আছে? পাক্কা? বুঝতে পেরেছিস ম্যানু ড্রিভেন? মজা এলো? মজা আসে না? কষ্ট করে ছোটখাটো দুটো অ্যাডিশন অফ টু নাম্বারস, সেটা ভালো না, মাথা কাটা দেওয়া হলো, তাই না? আরেকটা দিক না? কেন? কেন কপি করবি? বুঝেছিস? আমি অন্য প্রোগ্রাম দিচ্ছি, বুঝেছিস তো? এটা তোর বাড়ি থেকে প্র্যাকটিস করবি। দেখ আমি বারবার বলছি, আমি যেটা দেখাচ্ছি মানে আমি যেইভাবে কোডটা দেখাচ্ছি, এটার একমাত্র दिस इज नॉट द वन एंड ओनली लॉजिक। ये मतलब वो पत्थर पे लिखा हुआ कोई लकीर नहीं है कि इसी तरह से करना है, ठीक है? तुम मल्टीपल वेज में इसको कर सकते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हो जाता कि मान लो ये प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहाँ नहीं लिख के स्विच केस के बाहर लिख सकता था। प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकता था, ठीक है, जैसे इतना स्क्वायर यूनिट। प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे और चेंज कर सकता था कि यहाँ पे लिखता कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ दिस मच एंड ब्रेथ दिस मच इज दिस मच, इस तरह से कर सकता था। मल्टीपल वेज है करने का, ठीक है? इट इज अप टू यू कि तुम किस तरह से करना चाहते हो। जैसे ये स्टेटमेंट, ये चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, ये मैं यहाँ नहीं लिख के मैं इधर यहाँ पे लिखता कि चूज फ्रॉम द ऑप्शंस अबव, ये भी कर सकता था, ठीक है? ये तुम लोग को अपने घर में अलग अलग तरीके से ट्राई करना है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक तुमको समझ में नहीं आया कि हम किस तरह से इसके साथ खेल सकते हैं। नहीं तो फिर वो बंद जाओगे, घोड़ा जैसा हो जाएगा कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में इतना ही तुम कर पा रहे हो। वो मेरा टारगेट नहीं, मेरा टारगेट है तुम समझ के अपने तरीके से कोड डेवलप करो। समझ में आया बात? ठीक है, तुमको जो करना था एक तो सिंपल सा कोड करो। ये एक नंबर इनपुट लेना है, और अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो उस नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले करो, अगर 2 प्रेस करता है उस नंबर का क्यूब डिस्प्ले करो, अगर 3 प्रेस करता है उस नंबर का है, কি হয়েছে? 2 করলে স্কয়ার হলে ভালো হতো, 1 করলে তাহলে কি হতো? কি দেবো বল, 1 এ তো কিছু একটা দিতে হবে, টু দি পাওয়ার 1, 1 আর 2 ব্যাস। আচ্ছা, দেখ লিখে বল কি করবো, শুধু দুটো চার্জ দিচ্ছি তো, আর কি বলছিস? তাহলে 1 এ কি দেবো বল, বল আর কি 1 আর 2, 2 কে ফাইন্ড স্কয়ার বলি তো, স্কয়ার রুট করে দিলাম, input a number, to input a integer number and do the following.
according to user's choice. Find q of a number. कैसे number is given একটাই প্রোগ্রাম দিচ্ছি, দেখ একটা প্রোগ্রামে তোরা কান্নাকাটি করছিস, একটাই তো প্রোগ্রাম, আমি তো বেশি দিলাম, আমি 3-4টা তো করছি না, আমি একটাই প্রোগ্রাম দিচ্ছি। হ্যাঁ नंबर 4 हटा दे। এই ওয়ানটা ভেবে বল কি করবো। লেখ জলদি, লেখ সময় নেই, জলদি কর। फाइन को फाइन मतलब एक इंटीजर नंबर इनपुट करना है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स चॉइस, तो ये सब चॉइस डिस्प्ले कराना है तुमको, तो ये सब काम करना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर। হ্যাঁ ইভেন অডটা করে নিবি, করে দেবো, ঠিক আছে। 5 নাম্বার তো করেছি, করে নিবি আরেকবার। 5 নাম্বারটা হচ্ছে এমন একটা নাম্বার which either ends with 7 মানে ইউনিট ডিজিটটা 7 হতে হবে, or which is divisible by 7। ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি 21, 21 কি ইউনিট ডিজিট 7 আছে? না। ইজ ইট ডিভিজিবল বাই 7? তাহলে বাস নাম্বার। আর দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কন্ডিশন ট্রু হতে হবে। যেমন যদি আমি বলি 27, 27 ইউনিট ডিজিট 7 আছে? হ্যাঁ, তাহলে এটা বাস নাম্বার। যদি বলি আমি 20, 20 তে কি ইউনিট ডিজিট 7 আছে? ডিভিজিবল বাই 7 হচ্ছে? না, তাহলে ইট ইজ নট আ বাস। মানে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কন্ডিশন ট্রু হলে ও বাস নাম্বার হয়ে যাচ্ছে। তার সুইচ দি করবি, কোশ্চেন দেখবি। মধুরা এসে করবি, পিসিতে করবি, আর্শাল পিসিতে করবি। হ্যাঁ প্রোগ্রামটা দেখে না তুই ঠিক করছিস কিনা, কোনো অসুবিধা নেই। ইন্ডেন্টেশন তো সিনট্যাক্স এর দেবে না, ইন্ডেন্টেশন ইজ ফর ইওর ভিজিবিলিটি, কিভাবে দেখছিস, ঠিক আছে। ইন্ডেন্টেশনও মার্কস ক্যারি করে, বাট তুই যদি ইন্ডেন্টেশন না করে লিখিস তোর মানে কোনো এরর আসবে না, ঠিক আছে। এটা তো ছিল না, কি ছিল চুজ ফ্রম দ্য ফলোইং। আচ্ছা ফাইন্ড ওয়ান হচ্ছে স্কোয়ার অফ আ নাম্বার, সিমিলারলি পরেরটা কি আছে, টুতে স্কোয়ার রুট অফ আ নাম্বার। বুঝতে পারছিস? এইভাবে যেটা আছে 3 তে আমি একটা কিছু লিখবো যা আছে, তারপরে আমি 4 এ একটা কিছু লিখবো যেটা অপশন দেওয়া আছে, যেমন এখানে আছে না 3 তে কিউব অফ আ নাম্বার, 4 এ নাম্বার ইজ ইভেন অর নট, আর 5 এ আমি চেক করবো যে নাম্বার ইজ বাজ অর নট। তাহলে আমি 5 এটা এভাবে লিখবো। এতটা বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পেরেছিস তো? যদি না বুঝতে পেরেছিস তাহলে বল, ঠিক আছে, সবাইকে বলছি, ডিজিটাল ইন্ডিয়াকেও বলছি। এটা তুই চয়েস ডিসপ্লে করালি ইউজারের জন্য। নেক্সট স্টেপ কি হওয়ার কথা আমার, ইউজার একটা নাম্বার চুজ করে ইনপুট করবে, সেই ইনপুটটা আমাকে ক্যাপচার করতে হবে। কিভাবে ক্যাপচার করব? ইন্টিজার চয়েস ইকুয়ালস টু sc ডট
নেক্সট আইএনটি, এটা আমি চয়েসটা ক্যাপচার করে নিলাম। এরপরে বেসড অন দ্য ভ্যালু অফ সিএইচ আমাকে প্রোগ্রামটা ন্যাভিগেট করতে হবে। তাহলে আমি সেটা কোথায় দেবো? সুইচ কি লিখবো? সিএইচ, তাই না? তারপরে কি করব? केस वन कि अगर यूजर का इनपुट वन आया तो अगर वन आया तो क्या करेंगे यहाँ पे? फाइंड क्या करना है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। ये लॉजिक लिखोगे यहाँ पे। लॉजिक लिखने के बाद जब हो जाएगा लॉजिक लिखना तो ब्रेक कर दोगे, क्योंकि केस वन का काम खत्म। सिमिलरली केस वन के बाद क्या आएगा? केस टू आएगा, जहां पे लॉजिक लिखेंगे किसका? लॉजिक टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। फिर हम क्या करेंगे? ब्रेक लिखेंगे। बात समझ में आ रहा? इस तरह से हम फिर से केस थ्री लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो भी लॉजिक बोला है वो लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक हो जाने के बाद ब्रेक करेंगे, फिर केस फोर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे जो भी है। कमेंट हटा के लॉजिक लिखना है कमेंट के जगह, इतना समझ में आ रहा है ना? मैं लॉजिक लिख के नहीं दे रहा हूँ, वो तुमको लिखना है, मैं फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, केस फोर में लॉजिक लिखने के बाद ब्रेक करेंगे, फिर केस फाइव करेंगे, केस फाइव का जो भी बोला है वो लॉजिक यहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट करेंगे और फिर ब्रेक कर देंगे। अब क्या करना है? डिफॉल्ट करना है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो भी प्रिंट करना है, जैसे सिस्टम आउट प्रिंट करेंगे कि क्या करेंगे? इनवैलिड इनपुट कर देंगे। इसके बाद ब्रेक दे कि नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ना दो कोई इशू नहीं, प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है? ये काम हो गया, बस मेरा प्रोग्राम खत्म। इतना ही तो करना है, कितना टाइम क्या है, खत्म तो हो ही गया प्रोग्राम, बस लॉजिक ही तो लिखना है आपको, है? কি হলো? অসুবিধা বুঝেছিস? ডিজিটাল ইন্ডিয়া মধুরা হয়েছে, হয়ে গেছে, পাঠিয়ে দিস। আউটপুট আসছে, আউটপুট আসছে, ঠিক আছে। বাকি তোরা একটু পাঠা তো ডিজিটাল ইন্ডিয়া কি কি করেছে, আমি দেখি ঠিক এগোচ্ছিলি কিনা, তোদের খাতাগুলো একটু দেখা কি করছিলি। দেখ জিনিসটা না, এই যে এতটা এইভাবে দিস না, আন্ডারস্কোর যেটা হয় সেটা এতটা হয় না। সেটা কি হয় বলতো, এইভাবে তুই লিখলি স্পেশাল, ছোট্ট একটা দিলি নাম, তারপরে তার সাথেই, ঠিক আছে, তুই এই যে গ্যাপটা দিচ্ছিস না, এই গ্যাপ গুলো দিস না, এটা হয় না, বুঝেছিস? স্ক্যানার নিলি, তারপরে চুজ ফ্রম দ্য অপশনস বিলো 1 2 3 4 ঠিক আছে। ইনপুট নিলি, নাম জিরো, নাম জিরো কেন করছিস রে? কিসের জন্য? এই যে নামটা জিরো কি কাজে লাগবে ওটা পরে, কি নামটা কি কাজে লাগবে ইউজার, ভ্যালু ইনপুট তো, আচ্ছা যে ভ্যালুটা তো ভ্যালু ইনপুট প্রথমেই নিয়ে নে, সেটা তোর উপর, আমি লজিক দেখা দেখা রাস করা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আমরা চুজ অপশন বিলো ফাইন্ড স্কয়ার স্কয়ার রুট, নেক্সট আইএনটি এদিকে, নেক্সট আইএনটি এটা একসাথে লিখবি, ঠিক আছে, স্পেস দিবি না, নেক্সট করলি আইএনটিটা এর একসাথে করবি, কেমন? এই স্পেসটা হবে না, একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড, নট টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? কেটেছি আমি, তাহলে তাও শিখিস নি, তাও আবার ওটা লিখছিস, তাহলে বেশি নম্বর কাটিনি নাকি? তুই এটা ডিসপ্লে করালি, মানলাম ভালো কাজ করলি। তারপর তুই সুইচে এটা কি লিখেছিস রে? ওএইচ সি, এটা তো আমি তো বুঝতে পারছি না রে, আমি তো সি এইভাবে জানতাম, এই জিনিসটা কোথাকার সি? হ্যাঁ, সুভাষনগর এমনি সি লেখে নাকি? তুই বাঙাল পাড়ায় থাকিস সেই জন্য এমনি লেখা মনে হয়। হ্যাঁ, বাঙাল পাড়া এমনি লেখে সি গুলো, তবে আর তুই যে সিএস টা লিখছিস, সিএস টা কি করলে? সিএ নেক্সট আইএন এসির, এটা কি জিনিস, কি বটে এটা, কি ইনপুট নিয়েছিস? চয়েসটা, তুই চয়েসটা ডিসপ্লে করাবার আগেই চয়েসটা ইনপুট নিচ্ছিস, কিভাবে সম্ভব? তুই তো মানুষকে চয়েস দেখাবি যে বস ওয়ানে এত হবে, টু তে এত, থ্রি তে এত, তুই দেখাবার আগেই বলছিস তুই চোখ বন্ধ করে তুমি ইনপুট করাবে, তারপর আমি চয়েস দেবো। হ্যাঁ, এমন করলে কেমন হবে রে?
লেখ 50 বার লেখ মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম সেমিকোলন গুলো না দিয়ে পেনের কালি বাজাচ্ছিস? হ্যাঁ, ভুলে গেছিস? এক কাজ কর, এখান থেকে শুরু কর, এইভাবে 50 বার লেখ সেমিকোলন, 50 বার সেমিকোলন লেখ 50 টাইমস। আগেও তুই সেমিকোলন ভুলেছিস, তবে ভুলে গেছিস। ইন্টিজার নাম, ইন্টিজার নাম, ইন্টিজার नाम बोल अच्छा है, अच्छा वाला नाम, प्रोग्राम रिलेटेड कुछ नाम है। Which is one, enter the number, स्क्वायर फाइंड कर ले। देखो केस जो है ना सी स्मॉल होना है इस तरह से, तुम जो कियो दिस इज अ कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी गलत है। 50 टाइम्स 50 বার জলদি লেখ, যত জলদি শেষ করবে তত জলদি যেতে পারবি। এই তোরা পার্টি দেখ, দেখেছি ডিজিটাল ইন্ডিয়া পাঠালি, বাহ হর্ষলের হয়ে গেছে। এই তুই ও হর্ষল ভিডিওটা অন কর, হর্ষল তুই ইফেলস দিয়ে কেন করছিস? কতবার বলবো যে এটা সুইচ দিয়ে করতে হবে? হর্ষল কতবার বলবো সুইচ দিয়ে করতে হবে, কোনো মানে হলো না। স্যার আপনি কোশ্চেনে লেখেননি তো সেজন্য আমি দেখতেও ভুলে গেছি। আরে বাপ, মানে দোষটা আমার, তাহলে এটা তুই কর, দোষ না। স্যার পুরো কম্পাইলারে করছিস? হ্যাঁ কনসেপ্ট ডাবল আনসার কেস 1। মধুরা তুই কি করেছিস এটা বুঝলাম না, কেস 1 এ কি আছে? স্কোয়ার অফ আ নাম্বার, তুই ম্যান ডট ম্যাক্স ইউজ করেছিস কেন? স্যার ভুল করে ঠিক আছে, ঠিক করে নিবি না, সেমিকোলন করেছিস? ও তাও তো ভুল করেছিস রে, এদিকে সেমিকোলন হয়, ধর এটা লাইন, তো আমি কি করেছি দেখ, লাইনের এইভাবে সেমিকোলনটা দিয়েছি, তুই কি করেছিস, তুই একটা সোজা লাইন টেনেছিস, উপরে একটা ডট দিয়েছিস, দুটো কি একই? এবার লেখ এখানে 50 বার লেখ। হ্যাঁ হ্যাঁ back করে। ঠিক আছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া যেতে পারিস, হোমওয়ার্ক করে পাঠিয়ে দিস, আজকে রাত 10টা অবধি হর্ষল তুইও পাঠিয়ে দিস, আরণ্যক তুইও শেষ করে পাঠাস, কেমন? আমি বলি 10টা অবধি পাঠিয়ে দিস, 9টা থেকে 10টা 1 ঘন্টা টাইম পাবি।